Yes, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So we will be starting with the session. Yesterday we were discussing about the sale of goods. We will continue with that. Yes, yesterday we talked about the sale of goods, which type of goods are included in this contract of sale of goods that we had discussed, that only movable goods are to be included in this act. It is not concerned with any contract related to immovable goods that we had discussed. Plus we had discussed different types of goods, what are the existing or specific goods, then future goods and contingent goods. Yesterday, when we were closing our session, we were discussing a theory which is called as caveat-emptor. Now, this particular theory of caveat-emptor, which means let the buyer beware, is known as right of the seller. We had also discussed yesterday that there are various rights given to buyer or consumer in contract of sale of goods act as well as in Consumer Protection Act 1986. But there are very few rights which are given to the seller. One of the right is called as the theory of caveat-emptor, which means let the buyer beware. I hope that you have studied this particular concept of caveat buyer and Yes. caveat-emptor, and what are the various exceptions for caveat-emptor. So we will start with caveat-emptor. What is caveat-emptor? Yes, anyone, you can unmute yourself and we can start with the discussion. Yes, sir. I think the person who Yes. buy goods, those people should open, I mean, must keep open their eyes because they are Okay. responsible for their buying. Okay. And Very I good. think It is correct. Yes, it so. is correct. Yeah, the buyer is responsible for checking the quality and sustainability of the goods before the purchase we made. I mean, as a buyer. So we are Okay. responsible if we are buying anything. Okay. Can you give me an example? Yes, it is correct. Absolutely. Yes. A small example, like if I buy a coffee mug, ठीक है, और उसमें लिख है, but मैंने उससे खरीदा है कॉफी मग को, and later Okay. on I see कि उसमें वो लीक है या वो. Hello. Sir, can you hear Hello. me? Yes, 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 we can. Yes. Oh, I'm sorry, I missed some in between. I think due to some bad network. So I think maybe मैंने अच्छे से उसको check नहीं किया था. So lack of skills. Maybe उसके जो consequences होंगे that मुझे ही झेलने होंगे क्योंकि मैंने check नहीं किया. Because seller इस केस में seller responsible नहीं है. तो अगर मग लेके आने के बाद में घर आने के बाद मुझे दिख रहा है कि वो उसमें लीक है, तो इट इज माय फॉल्ट कि मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा कि वो नीचे से टूटा हुआ था या मे बी अगर मैंने अच्छे से देखा होता तो इसीलिए आई मेंशन दैट द बायर हु बाय दिस आई मीन एनीथिंग मस्ट कीप ओपन देयर आईज. Very good, very good. So example and explanation both are correct. Very good, it is correct. So caveat-emptor, as you have said, it is, I'll just read the lines. A seller is under no duty to reveal unflattered truths about the goods sold, and therefore whenever a buyer buys the goods, he must exercise necessary care in his own interest. So the example which is given is correct. If you are going for buying, say, crockery, glassware, then it is the duty of the buyer to check whether
the glassware which he or she is buying is correct or not. Whether is there any crack or is there any breakage, anything, it is to be checked, it is to be confirmed by the buyer before he pays money for that particular glassware. So that is what is expected, and that is the theory of caveat emptor. As you said that on going home, when you check that coffee mug was cracked from the bottom, at that moment, if you again go to the seller and ask for refund, seller is not bound to give you the refund of that particular mug. 100 रुपए का मग था, 100 रुपए का आपको लॉस झेलना पड़ेगा, वहां पर सेलर आपको रिफंड नहीं करेगा. Even if you try to take the seller to the court will give an excuse to the buyer under the theory of caveat emptor, because it is the duty. Court will definitely inform the buyer that it was your duty to check before you pay the money for that particular glassware. Unflattered truths means a seller is under no duty to reveal unflattered truths. Unflattered truths means each and every detail of that particular product he is not supposed to share with the buyer. Who? Seller, right? But there are certain exceptions. As we know that consumer is regarded as king, बराबर, कंज्यूमर को किंग का दर्जा दिया जाता है, कंज्यूमर को भगवान का दर्जा दिया जाता है. अब यही दर्जा सेलर को नहीं है. अब ये दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं जो कंज्यूमर को या बायर को प्रोटेक्ट करते हैं. बहुत ही कम ऐसे लॉ है जो सेलर को प्रोटेक्ट करते हैं. वैसा ही एक कंसेप्ट या एक लॉ है केविट एम्प्टर. पर केविट एम्प्टर में भी 4 एक्सेप्शंस. If these exceptions are present in the case of buyer, then buyer is having every right that he can either claim the refund, or if the seller is not providing refund to the buyer, in that case buyer is having every right to file a case against the seller in the court of law, and court will declare the ruling or the order in the favor of the buyer, because these exceptions are involved in that particular case. तो जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा कि कॉफी मग लिया, कॉफी मग नीचे से क्रैक था, तो इसमें सेलर की गलती नहीं. ग्लासवेयर है, गलती से टूट गया था, वो डिस्प्ले में रखा हुआ था, जब बायर ने उसे अच्छे से देखा तब किसी भी बायर को ये समझ जाना चाहिए कि अरे साइड से थोड़ा टूटा हुआ है, क्रैक दिख रहा है, तो नहीं लेना चाहिए. फिर भी उसने लिया, तो ये बायर की गलती थी, सेलर की नहीं. तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हियर टू पे दी रिफंड. अब हम लोग कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे. अगर ये एक्सेप्शनल केसेस हैं किसी भी सेल ऑफ गुड्स के अंडर, तो जो सेलर है he cannot escape or he cannot give an excuse of caveat emptor. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो क्या exceptions है? First exception is implied condition or to quality or fitness for buyer's purpose. Next is mercantile quality or sale of goods by description. Next is usage by trade, and last one is consent by fraud. Yes, if anyone has read about these exceptions, you can unmute yourself and you can proceed with the answers. Sir, for implied conditions, Yes. Suppose goods are purchased under a brand name, or if we are buying a branded clothes or something. Okay. So in this condition, the seller is not responsible if the quality of that is degraded or not good.
Okay. because it's a branded product. Okay. So here seller is not responsible. Suppose if can you give us an example? If you are buying a Nike shoes, suppose say हाँ that later on, if you see there are some defects, हाँ yes so seller is actually not responsible. Means it is an exception. I think. Means I got little confused in this. हाँ. Now when we are talking about, yes, this is half correct. Later Yeah. part is correct. Now I'll just complete it. Anyone else who wants to try? We are talking about where seller is not given a excuse or he cannot escape from his responsibility. In earlier example, when the buyer has purchased mug, seller was in a position to give excuse that no, I am not responsible for refund because it was your duty to check at the time when you were making the purchase. So that excuse is accepted by the court also. But now we are talking about the conditions or the exceptions, or in certain cases when these things are present, these four things are present, the seller cannot escape his responsibility in these particular circumstances. So first one is implied condition or quality, implied condition to quality or fitness for buyer's purpose. So half answer is correct, which is given by you. Next half is what we are talking about कि यहाँ पर seller excuse नहीं दे सकता, seller को refund करना पड़ेगा, नहीं तो seller के ऊपर केस हो सकता है. आपने जो अभी बताया वो आधा आगे का आंसर है, मतलब आधा करेक्ट है, पहले का आधा क्या हो सकता है? कोई और? Yes, anyone else? You can unmute yourself. जितना ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा समझ में आता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड when we are dealing with a subject like law, it is very much technical. We have to follow certain terms, and we have to go through certain languages which are technical in nature, which is not very familiar to us or which is not very common. थोड़ा टेक्निकल नॉलेज रहता, ये लैंग्वेज रहती है, घुमा फिरा के लिखा रहता है. कोई भी लॉ अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग. तो जितना ज्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा. रट्टा मारेंगे तो नहीं, एग्जाम में तकलीफ होगी. यस, इवन इफ इट इज रॉन्ग, ट्राई टू गिव द आंसर. Now abhi try to understand the point. The point is implied condition. Implied condition as to quality. Implied मतलब जहां पर express नहीं है, ठीक है? Implied means when everyone is aware of that particular thing, that is implied. Everyone knows. When a person, as we had discussed in implied contract also, when a person boards a bus and he wants to go from one place to another, the person is aware that if he wants to avail the services of this bus, he has to pay the fare of that particular traveling. Same is the case here also. Implied condition when the seller and the buyer are aware of the implied condition of the quality of and fitness of that particular product, right? Quality and fitness for the buyer's purpose. अब ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं, ऐसे कुछ सेल आइटम्स हो सकते हैं जो इम्प्लाइड है, जो सबको पता है कि इसका क्या यूसेज होने वाला है, ठीक है? एज टू क्वालिटी एंड एज टू फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस. अब सपोज घर में एक न्यूबॉर्न बेबी है और न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक दूध की बोतल लेनी है बायर को.
जो फादर है वो जाते हैं, मतलब बायर, ही गोज टू द केमिस्ट शॉप एंड ही आस्क फॉर अ बॉटल, ठीक है, दूध की बॉटल के लिए वो बोलते हैं और केमिस्ट उनको दूध की बॉटल दे देता है। अब यहां पर दोनों को भी पता है, केमिस्ट को भी पता है और फादर जो बायर है उनको भी पता है, मतलब केमिस्ट इज सेलर, फादर इज बायर। देयर इज अ इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस। अब बायर यानी फादर वो बॉटल क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको हल्का गर्म करके दूध पिलाना है बॉटल के। अब वो बॉटल लीक नहीं होनी चाहिए, उस बॉटल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन, राइट। अगर घर जाने के बाद वो बॉटल की कंडीशन खराब होती है, जैसे ही गर्म दूध उसमें डाला वो लीक हो गई बॉटल, तो here this excuse of Kevit Emter will not save the seller. The seller has to refund the amount, has to replace the bottle. If he refuses, he can be taken to the court of law, because the court will assume that it is an implied condition which everyone knows, that when a milk bottle is to be purchased from a chemist shop for a newborn baby, what should be the quality of that bottle and for what purpose the buyer is purchasing that bottle. So there is no excuse, यहां पर excuse नहीं हो सकता। ये हुआ इसका first part. Now the second part, where you had given the example that if the buyer is purchasing a shoe from Nike, Nike itself, the brand itself says that the quality and fitness is tried and tested. यहां पर अगर सेलर नाइके शूज बेच रहा है तो वहां पर उसे बताने की जरूरत नहीं है, किसको? बायर को, कि ये नाइके शूज है, बहुत अच्छा शूज है, क्योंकि बायर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज अवेयर ऑफ द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर शूज। अगर वो शूज घर लेके जाता है या जाती हैं और वहां पर वो शूज अगर खराब निकलते हैं, वहां पर अगर वो शूज खराब निकलते हैं, तो here seller is not responsible, because he is selling a item of a particular brand where it is mentioned that it's a guarantee for 2 years, guarantee for 3 years. तो 3 साल की गारंटी किसने दी है? सेलर ने नहीं, ब्रांड ने दी है। तो here brand is responsible, seller is not responsible. You cannot claim the compensation from the seller, but yes, as a consumer, as a buyer, you are having every right to claim the compensation from the brand, from the Nike shoes, because it was the company which has given the guarantee. It is not the seller who has given the guarantee. But such type of guarantee normally is not given when you are purchasing certain things like milk bottle. तो मिल्क की बॉटल अगर ले रहे हैं तो उसके साथ वो कोई गारंटी नहीं आ रही। पर अगर आप नाइके शूज ले रहे हैं, अगर आप रीबॉक के शूज ले रहे हैं, अगर आप एडिडास के शूज ले रहे हैं, तो वहां पर जरूर आपको एक गारंटी कार्ड भी मिलता है, एक वारंटी कार्ड मिलता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि इसका सोल 1 साल तक खराब नहीं होगा, इसकी सिलाई 1 साल तक नहीं उधड़ेगी, जो भी है वो सब लिखा हुआ है। तो सेलर हियर इज कैन हैव अ एक्सक्यूज कि ये ब्रांडेड था, ये कंपनी ने गारंटी कार्ड दिया था। आप डायरेक्ट कंपनी से बात कर सकते हैं, आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी विल रिप्लेस योर शूज और इट विल प्रोवाइड यू कॉम्पनसेशन ऑल्सो। हैव यू गॉट इट नाउ? Yes, sir. ओके, यस सर, एक कोई सिंपल एग्जांपल बताइए। हाँ, और क्या सिंपल एग्जांपल? अभी सपोज अभी नॉर्मली जैसे अभी पीठ में दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हॉट बैग्स लेते हैं ना, हॉट वाटर बैग, सबको पता होगा वो शायद, हॉट वाटर बैग। अब सपोज मेरी पीठ में दर्द है तो मैं एक केमिस्ट के पास जाता हूँ और मुझे एक हॉट वाटर बैग चाहिए।
तो मैं उसे बोलता हूं कि एक हॉट वाटर बैग अच्छी क्वालिटी की दे दीजिए। अब एज अ बायर आई एम नॉट अवेयर ऑफ वेरियस ब्रांड्स दैट आर प्रोड्यूसिंग और दैट आर मैन्युफैक्चरिंग दैट हॉट वाटर बैग, ठीक है। तो वहां पर जो सेलर ने, सेलर इज हु, द केमिस्ट इज द सेलर, आई एम द बायर देयर, वो बोलता है ये 300 रुपए की हॉट वाटर बैग है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, आप लेके जाइए। मैं वो ले लेता हूं, घर पे आता हूं। अब हॉट वाटर बैग अगर मैं नहीं भी बताता हूं उसे कि मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, तो भी इंप्लाइड कंडीशन क्या है, हम दोनों को पता, मतलब केमिस्ट इज ऑल्सो अवेयर, आई एम ऑल्सो अवेयर कि ये किस यूसेज के लिए है, इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अब मैं केमिस्ट की दुकान पे वहां पर जाके, जैसे अगर ग्लासवेयर है तो हम लोग वहां पर देख सकते हैं कि इसमें क्रैक है क्या, ये टूटा हुआ है क्या, तो वो हम लोग वहां पर चेक कर सकते हैं। अब गर्म पानी की मेरे को बैग लेनी है, तो मैं वहां पर गर्म पानी लेके नहीं जाऊंगा या उसको टेस्ट करके नहीं देखूंगा कि वेदर इट इज लीक प्रूफ है या लीकेज है उसमें। मैं घर पर लेकर आता हूँ, गर्म पानी करता हूँ, उस बैग में डाल देता हूँ, उसको ढक्कन लगाता हूँ और जैसे ही देखता हूँ तो वो नीचे से लीक होने लग जाता है पानी। अगर मैं केमिस्ट के पास वापस गया तो केमिस्ट हैज टू आइदर रिप्लेस दिस हॉट वाटर बैग और he has to refund the money. Why? Because there is a implied condition as to quality and fitness for the purpose. Purpose क्या है कि अगर मेरी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, सेकना है, मुझे हाथ सेकने हैं, पैर सेकने हैं, मेरे पेरेंट को किसी को तकलीफ है, अगर मैं वो सेकने के लिए वो बैग ले रहा हूं, उसका क्या मतलब है कि उसमें मैं गर्म पानी डालूंगा और फिर अपने शरीर जिधर भी मुझे तकलीफ है उसको सेकूंगा। अगर ये कंडीशन क्या है कि ये गर्म पानी इसके अंदर रहना चाहिए, लीक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठंडा पानी डाला तो नहीं लीक होगा, गर्म पानी डाला तो इमीडिएटली लीक हो गई वो मतलब इट इज नॉट एज पर द क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ द बायर। तो यहां पर एक्सक्यूज नहीं है, किसको? सेलर को, केमिस्ट को। आई होप नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट इज मर्केंटेबल क्वालिटी और सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। यस, तो अभी हम लोग जितना भी ये डिस्कस करेंगे चारों पॉइंट, ये क्या है कि यहां पर केवी टेम्पटर का एक्सक्यूज सेलर नहीं दे सकता, बाकी चीजों में यस ही कैन गिव। नेक्स्ट, यस, मर्केंटेबल क्वालिटी और सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, कौन बताएगा? मर्केंटेबल मतलब क्या रहता है? मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब, यस बॉयज, मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब बहुत सिंपल, मर्केंटेबल क्वालिटी, बीबीए, बीकॉम जिसका भी है, बहुत इजी है, हो चुका है सब कुछ। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब क्या? यस, एनीवन, बॉयज, गर्ल्स, व्हाट इज मर्केंटेबल क्वालिटी? मर्चेंट क्या रहता है? मर्चेंट, व्हाट इज मर्चेंट? यार अभी डोंट टेल मी दैट यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ मर्चेंट। व्हाट इज मर्चेंट? So merchant is a trader, one who sells. वेरी गुड, मर्चेंट इज अ ट्रेडर, हिंदी में जिसे हम लोग व्यापारी बोलते हैं ना, व्यापारी। तो मर्केंटेबल गुड्स मींस, मर्केंटेबल क्वालिटी मींस ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट की जिसे हम लोग बेच सकते हैं, जिसका हम लोग व्यापार कर सकते हैं, दैट इज मर्केंटेबल क्वालिटी। नाउ एनीवन who would like to explain this mercantable quality or sale of goods by description? मर्केंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, कैसी क्वालिटी? जिस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सके, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी क्वालिटी उसकी होनी चाहिए।
जिसका व्यापार किया जा सके, ऐसी क्वालिटी प्रोडक्ट की होनी चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट की ऐसी क्वालिटी नहीं है, इफ द प्रोडक्ट इज नॉट सेलेबल because of its quality in the market, that product will be called as unmarketable quality product. ऐसा प्रोडक्ट जो व्यापार मतलब जिसका व्यापार नहीं किया जा सकता, जिसको बेचा नहीं जा सकता मार्केट में। क्यों नहीं बेचा जा सकता? क्योंकि उसकी मार्केटेबल क्वालिटी ही नहीं है। क्या हो सकता है मार्केटेबल क्वालिटी? बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं और बहुत इजी है। Okay, I'll give you an example, very simple example. Now suppose Mr. A wants to buy a ceiling fan. He goes to a shop and he selects a ceiling fan. He inquires about the price of the ceiling fan. He checks the ceiling fan and he buys that ceiling fan. When he comes with the ceiling fan to his place, he approaches an electrician, and with the help of that electrician, he installs that ceiling fan in his hall. When he switches on the fan starts producing lots and lots of noise, and he observes that fan is producing only noise and it is not producing the thing which it should, and that thing is हवा। तो एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल क्या था कि बायर को एक सीलिंग फैन खरीदना है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाता है, एक सीलिंग फैन पसंद करता है, सीलिंग फैन को अच्छे से चेक करता है और 2000 रुपए की कीमत होती है वो सीलिंग फैन की। वो सेलर को पे करता है, सीलिंग फैन लेता है, घर पे आता है, इलेक्ट्रीशियन की मदद से वो इंस्टॉल कर देता है। जैसे ही वो स्विच ऑन करता है तो फैन घूमने लग जाता है। जब फैन घूमता है तो बहुत ज्यादा उसके साथ आवाज होती है, खर-खर, घड़-घड़ ऐसी नॉइज आती है, और 5 मिनट के बाद बायर को ये रियलाइज होती है कि सिर्फ आवाज आ रही है, हवा तो आ ही नहीं रही, हवा तो आ ही नहीं। Immediately buyer goes to the seller and he brings these things to the notice of the seller. अब सेलर क्या उसे बोलता है बायर को कि आपकी जवाबदारी थी कि आपने अच्छे से चेक करना चाहिए था सीलिंग फैन की क्वालिटी। आपने अगर इधर ही चेक किया होता तो ये शायद प्रॉब्लम नहीं आता। अब आपकी गलती की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग द सीलिंग फैन और फॉर गिविंग यू रिफंड ऑफ 2000 रुपीज। मेरी जवाबदारी नहीं है, सीधा वो बता देता है। और वो पढ़ा लिखा है सेलर, वो बता देता है कि आई हैव गॉट अ राइट अंडर केविट एम्प्टर that I am not supposed to disclose you each and every minute details of the fan, कि कितने सेंटीमीटर के इसके ब्लेड्स हैं, कितने वोल्ट की इसकी मोटर है, इसके अंदर कितने स्क्रू फिट हैं, ये सारे जो बारीक बारीक डिटेल्स हैं, केविट एम्प्टर का जो रूल है वो मुझे प्रोटेक्ट करता है कि आई एम नॉट सपोज टू शेयर एवरीथिंग विथ यू। Whatever information you had asked at the time of buying that fan, I had shared all the information. Now I will not refund you. अब इस सूरत में आप मुझे बताइए कि क्या ये एक्सक्यूज केविट एम्प्टर का सेलर को बचा सकता है या नहीं बचा सकता? जो भी आपको लगता है बताइए। एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सीलिंग फैन खरीदा गया, सीलिंग फैन जब इंस्टॉल हुआ तब सिर्फ आवाज आ रही है, हवा नहीं आ रही है। अब बायर चाहता है कि या तो सीलिंग फैन बदल के दे सेलर,
या फिर उसके 2000 रुपए वापस करे। सेलर बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसे पता है कि ही इज प्रोटेक्टेड अंडर केवी टेम्पटर। केवी टेम्पटर में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हर एक बारीक डिटेल वो बाउंड नहीं है बायर को बताने के। तो इसलिए वो बायर को बोलता है ये आपकी गलती हुई, आपने चेक करके लेना चाहिए, आपने नहीं लिया, अब मैं नहीं रिस्पॉन्सिबल, अब आप देखो क्या करना है, ऐसा सेलर बोल के हाथ झटक देता है। तो अब मुझे आप बताइए कि इसमें सेलर क्या बच सकता है केविट टेम्पटर के अंडर? यस बोलिए। Sir, Neha here. I'm not sure whether I am correct or not, but based on this example, I think no problem. Yes, go ahead. Yes. हाँ. I think the purpose of the good, जो fan उस person ने खरीदा, उसका purpose पूरा नहीं हुआ, तो quality की वजह से जब उसका purpose पूरा नहीं हुआ, yes, तो इस हिसाब से तो seller equally responsible, क्योंकि जो purpose था वो पूरा होना चाहिए था, although वो sound कर रहा था। Here we are talking about mercantile. Wait. Purpose का पहले था. First point was involved related to buyer's purpose. Now this point is related to merchantable quality. Yeah? Yes sir. I that's true. हाँ. But what that जो seller है वो भी responsible है, good जो बेच रहा है, जो भी वो सेल कर रहा है, उसका क्वालिटी वो रिस्पॉन्सिबल के लिए कि जब वो कोई भी सामान बेच रहा है तो उसका जो मेन पर्पस है बेचते वक्त जो क्वालिटी है, यस, हाँ, गो अहेड, यस, जिस चीज के लिए करता है कोई बायर, ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू, सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल। सर आई हैव वन क्वेश्चन, either trying to refund or replace. yes Advait. हाँ सर, अभी मैंने अगर वॉशिंग मशीन खरीदी है तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखा होगा कि मेरे वॉशिंग मशीन में ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, तो अगर ऐसा होगा तो मेरा वॉशिंग मशीन तो बेचा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो मर्चेंट है वो थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल होगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, ओके, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग। अच्छा, और नहीं, I'll give you the explanation, just wait. Other, if anyone would like to add anything, anyone, if you would like to add anything. Okay, sir, I guess so it's hello. Yes sir, I guess it's the buyer's responsibility as well to get the product checked in the first place. So you are saying that the seller is protected under KV Tempter? Yeah, exactly. Because a product like fan can be checked easily in the store itself. Okay. सर बट मैं 10 फैन खरीदूंगा, नहीं तो 10 वॉशिंग मशीन खरीदूंगा। हाँ। तो और मैं सेलर हूँ, तो मैं थोड़ी हर एक वॉशिंग मशीन चेक करूंगा सर। हाँ। तो मर्चेंट तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ना यहाँ पे, जो तो बेचने वाला है रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू आर सेइंग जो मैन्युफैक्चरर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो मैन्युफैक्चरर है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, गुड। एनीवन एल्स? Now one student is saying that yes, it should be refunded, merchant is responsible. One student is saying buyer should have checked it at the time of buying, and the other one is third one is saying that here the seller or merchant is not responsible, here it is the responsibility of the company, so company should pay the compensation. It is because of the company, right? Now here, when we are talking about merchantable quality, we are not talking about manufacturing quality, we are talking about merchantable quality. Now if it is a manufacturing defect
and if it is brought to the notice of the seller by the buyer, it is the responsibility of the seller to replace the machine, and later on the seller can claim it from the company. This is first thing. Now the second thing, where one student is saying that the buyer should have checked it. Now why the buyer is given this excuse and why the seller is not given the excuse under KV Tempter? Because of mercantable quality. Mercantable quality, the product quality which the seller is selling in his shop should be mercantable. That means it should be selling quality. selling quality सेलिंग क्वालिटी क्या होगी कि जो चीज जिस क्वालिटी की होनी चाहिए वो उस क्वालिटी की होनी ही चाहिए. अगर यहां पर बायर नहीं चेक करता है, सीधा वो बॉक्स वैसे की वैसे ही उठा के घर ले जाता है, और घर ले जाके इंस्टॉल करने पर अगर उसे ऐसा लगता है कि नाउ बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है और हवा नहीं आ रही है, तो भी बायर इज हैविंग अ एक्सक्यूज अंडर that as the product was not of mercantable quality, it should, the buyer should get either refund or get replacement of fan. right, यहां पर mercantable quality नहीं थी, इसीलिए अगर बायर ने कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं देखा, तो भी बायर को वो एक एक्सक्यूज मिल जाएगा कि अगर वो ये प्रूव कर सके कोर्ट में कि मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं है. मर्केंटेबल क्वालिटी सीलिंग फैन की क्या है? किसी भी कंपनी का सीलिंग फैन हो, चाहे वो उषा कंपनी हो, खेतान हो, ओरिएंट हो, या कोई भी कंपनी हो, सीलिंग फैन का क्या काम है? उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आवाज नहीं आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए. आवाज आए तो थोड़ी सी आए, ज्यादा नहीं. सिर्फ आवाज आ रही है, हवा नहीं आ रही है, तो इट इज नॉट ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी. ये सेलेबल गुड्स नहीं है. सेलेबल गुड्स अगर आप बेचते हैं अपनी दुकान में, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस. दैट इज, दो बायर यहां पर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, सेलर इज नॉट एट ऑल प्रोटेक्टेड. नाउ when we are talking about that it was the fault of the company, not of the seller, not of the seller. पर जब बायर ने ये फैन खरीदा है सेलर से, तो वो सेलर के पास जाएगा और सेलर से ही क्लेम करेगा. नाउ हियर it is not that seller will be repaying the compensation or will be paying the compensation or refunding the money from his pocket, but he can absolutely claim from the company. यहाँ पे बायर सेलर के पास गया कि मुझे 2000 का रिफंड चाहिए या फिर मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए. इमीडिएट मर्चेंट क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, उसको रिप्लेस करके देना ही पड़ेगा क्योंकि मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं है. एंड द मर्चेंट और द सेलर कैन कॉन्टैक्ट द कंपनी कि आपने ये जो फैन भेजा था ये बिल्कुल भी खराब क्वालिटी का था, तो अब आप वो कंपनी को रिटर्न कर सकता है. कंपनी उसके बदले में उसे सेलर को दूसरा फैन देगी. क्यों देगी? क्योंकि मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं है. तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो मर्केंटेबल नहीं है, जो सेलेबल नहीं है मार्केट में क्वालिटी के हिसाब से या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, देन दैट प्रोडक्ट डज नॉट प्रोटेक्ट द सेलर अंडर केविट एम्प्टर. अब डिस्क्रिप्शन सपोज हम लोग बोलेंगे तो अगर मुझे मोबाइल फोन खरीदना है, मुझे एक 20,000 का मेरा बजट है, मुझे मोबाइल फोन खरीदना है. हम लोग क्या करते हैं खरीदने से पहले, अगर ऑनलाइन खरीदेंगे या ऑफलाइन खरीदेंगे, दुकान में जाके पहले स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि उसका कैमरा कितना है, उसका मेमोरी कितना है, उसका रैम कितना है, उसका जो ये कितना बड़ा स्क्रीन रहेगा. ये सब चीजें हम लोग जो चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्शन. दैट इज डिस्क्रिप्शन, कि हम लोग स्पेसिफिकेशन चेक करके फिर खरीद रहे हैं. अब मैं स्केल लेके तो दुकान में जाऊंगा नहीं कि 6.5 इंचेस का स्क्रीन है तो वो 6.5 ही होना चाहिए. मैंने वो फोन खरीदा, घर आने के बाद मुझे पता चला कि वो 6.5 का इंच स्क्रीन नहीं है, वो 6.15 का है या
6.25 का है या 6 का स्क्रीन है, तो इट इज नॉट मर्केंटेबल क्वालिटी, इट इज नॉट मर्केंटेबल क्वालिटी। अगर गलती से आया है तो इट शुड बी रिप्लेस्ड, द मनी शुड बी रिफंडेड, और अगर जानबूझ के किया है तो इट इज अ फ्रॉड, दैट वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट कंसेंट ऑफ फ्रॉड। आई होप नाउ एवरी दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next one is usage by trade. Usage by trade, try to understand the word by trade. Usage by trade मतलब सेलर उस ट्रेड में है जिस ट्रेड में ये चीजें पता है कि कैसे बेची जाती हैं या कैसे स्टोर किया जाता है इसे। ठीक है, अब एक एकदम सिंपल एग्जांपल कि बायर जाता है डेयरी फार्म में दूध खरीदने के लिए, या एक डेयरी प्रोडक्ट का शॉप है जहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे स्टोर्ड होने चाहिए? यूसेज बाय ट्रेड। जो भी ट्रेडर, जो भी सेलर डेयरी प्रोडक्ट्स बेचता है, दैट सेलर इज अवेयर ऑफ दिस थिंग that the dairy products are to be stored in refrigerator। बराबर है ना, कि अगर दूध वो बेच रहा है, अगर वो पनीर बेच रहा है, अगर वो दही बेच रहा है, या डेयरी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है, या आइसक्रीम वो बेच रहा है, तो कैसे रखनी चाहिए वो और कहां पर रखनी चाहिए? यूसेज बाय ट्रेड मीन्स द ट्रेडर, द सेलर इज अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सेलर को पता है। अब बायर को भी ये पता रहता है कि अगर वो दूध खरीदने जाएगा तो उसे वो सेलर क्या करेगा कि ऐसी जगह से दूध निकाल के देगा, फ्रिज में से देगा, या फिर नॉर्मली अगर इमीडिएट, अगर अर्ली मॉर्निंग अगर आप लोग दूध लेने जाएंगे तो वो छोटे छोटे से क्रेट्स रहते हैं जो 3-4 घंटे तक उसके अंदर भी वो लोग पानी डाल के थोड़ा सा दूध रखते हैं, पैकेट्स। तो जब तक वो ठंडा है तब तक दूध खराब नहीं होता है। 2 या 3 घंटे के बाद इमीडिएटली वो जो पैकेट्स क्रेट के बच जाते हैं उसको वो लोग फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में क्यों रखा जाता है? क्योंकि दीज प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल। इफ दे आर नॉट सेव्ड इन स्टोर्ड इन फ्रिज, देन वो स्पॉइल हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। ये यूसेज बाय ट्रेड सेलर को भी पता है और बायर को भी पता है। ठीक है, अब बायर जाता है दूध की एक आधा लीटर दूध लेने के लिए, एक पैकेट लेने के लिए, तो क्या एक्सपेक्टेड है यूसेज बाय ट्रेड के हिसाब से कि जो दूध वो खरीद रहा है वो दूध अच्छी क्वालिटी का है, वो दूध खराब नहीं, वो दूध खराब नहीं है। अगर उसके ऊपर वो जाता है सेलर से दूध लेता है और घर आके ऐसा वो जब गर्म करता है तो वो दूध फट जाता है, तो here seller is not protected under caveat emptor if he is not storing the dairy product in refrigerated in refrigeration or with the help of refrigeration or in fridge। अब ट्रेड के हिसाब से ही उसे पता होना चाहिए सेलर को कि अगर मैंने बहुत देर तक ये दूध के पैकेट्स बाहर रखे तो वो खराब हो जाएंगे। बायर दूध लेने के लिए गया, दूध के पैकेट्स बाहर क्रेट में ही पड़े थे, फ्रिज में वो रखे नहीं सेलर ने। बायर गया उसके पास और बायर उससे एक दूध का पैकेट लेता है और उसे पूछता है फ्रेश है ना? तो वो बोलता है कि हाँ एकदम फ्रेश है, अभी आया है, अभी थोड़ी देर के बाद मैं अंदर रखूंगा, तो आप लेके जाइए। 25-30 रुपए जो भी कीमत होती है वो दे देता है और घर पे आने के बाद दूध फट जाता है। तो यहाँ पर दी seller is not protected under caveat emptor। अगर यहाँ पर बायर उससे रिफंड मांगता है तो he has to pay the refund, or the buyer is having an option to take the seller to the court of law and claim compensation। ठीक है, so that is called as usage by trade। Last one is consent by fraud। Consent by fraud, consent is when you agree to something। ठीक है,
consent, willing. By fraud, we know what is fraud. When a person is deceiving the other person, जब किसी को जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत इंफॉर्मेशन देके या कुछ गलत करके उसके साथ धोखा देता है, that is called as fraud. So consent by fraud. Yes. अब यहाँ पर the seller, if he is selling a product or if he is giving information about a product which he knows that the information is not correct, that the information is wrong, still if he provides that information to the buyer and makes the buyer believe that this wrong information is actually correct, तो यहां पर सेलर क्या कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है अपनी दुकान में, वो प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी वो बायर को दे रहा है वो गलत है जानकारी, एंड द सेलर नोज दैट ही इज गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द बायर, but to deceive the buyer intentionally, the seller is sharing wrong or incorrect information with the buyer, और बायर को जो वो इंफॉर्मेशन जो झूठी है, इंफॉर्मेशन है, जो गलत इंफॉर्मेशन है, वो सही लगती है, और अगर वो प्रोडक्ट वो खरीद लेता है और लेटर ऑन अगर वो प्रोडक्ट कुछ उसमें खराबी निकलती है या वो प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट निकलता है, तो सेलर इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द थियरी ऑफ केविट-एम्टर. व्हाई? बिकॉज ही हैज कमिटेड फ्रॉड. पर ये एक्सेप्शंस कब होंगे? व्हेन द सेलर एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक, और इफ ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट his fault, when the buyer will take the seller to the court of law, then only these exceptions are applied. Right? अब दूध का एक पैकेट था, खराब हो गया, सेलर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, आपकी गलती है, मैं नहीं दूंगा. नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, 24 रुपए के लिए क्या झगड़ा करना, या 25 रुपए के लिए क्या झगड़ा करना, अगली बार से मैं इसके दुकान से माल नहीं लूंगा, अगली बार से मैं इसकी दुकान से माल नहीं लूंगा, और छोड़ देते. तो यहां पर ये एक्सेप्शंस कब लागू होंगे? जब आप या तो सेलर मान जाए, वो अपनी गलती मान लेता है, अरे गलती से मैं ये क्रेट बाहर ही रख दिया था, सॉरी मेरी गलती हो गई, ये दूसरा पैकेट अंदर फ्रिज में से वो निकाल के दे देता है, मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया. अब उसने अगर एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपके पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन कि एज अ बायर आप छोड़ दें उसको, या फिर आप उससे झगड़ा कर रहे हैं और झगड़ा करके ले रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि यू कैन टेक हिम टू द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट और अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. दोनों भी एक्ट्स के अंडर आप उसे कोर्ट में लेके जा सकते हैं. पर जहां पर प्राइस बहुत कम रहता है, वहां पर नॉर्मली पीपल ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स. ठीक है? सो कंसेंट बाय फ्रॉड मीन्स व्हेन द रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय द सेलर. अब बायर को फोन खरीदना है और उसे आईफोन खरीदना है, बायर को आईफोन खरीदना है. अब सेलर की दुकान में बहुत सारे फोन्स हैं, उसमें आईफोन भी है. अब फ्रॉड कैसे होगा कि जो आईफोन खरीदना है जिस बायर को, उसका 50,000 का बजट है, वो उसे पूछता है कि इस रेंज में कौन सा आईफोन है, आईफोन 10, आईफोन 11 या जो भी आईफोन उस रेंज में है, वो सेलर उसको दिखाता है. बायर ऊपर से पैकेजिंग देखता है, उसमें आईफोन का लोगो है, आईफोन दिख रहा है कि ये आईफोन ही है. जब वो खोल के फोन देखता है, जब ये उसकी जो सील है वो सील तोड़ देता है सेलर, और उसको वो पीस दिखाता है, पीस ऑन करके दिखाता है,
वो जो हैंडसेट है उसके पीछे वो एप्पल का लोगो है, तो समझ जाता है बायर कि ये एप्पल का ही फोन है और ये आईफोन ही है, और वो खरीद लेता है। बाद में 1 महीने के बाद उस फोन में डिफेक्ट आता है, और जब डिफेक्ट आता है तो ये आईफोन है, इसीलिए आईफोन के केयर सेंटर में बायर जाता है। तो केयर सेंटर वाले जब आईफोन का प्रॉब्लम देखते हैं और जब वो पीस को खोलते हैं हैंडसेट को, तब रियलाइज होता है कि ऊपर से जो कवर है वो आईफोन का है, जो लोगो है वो आईफोन का है, पर अंदर का जो मदरबोर्ड है, जो सर्किट्स इन्वॉल्व हैं, या जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं अलग अलग, वो एप्पल कंपनी के नहीं है, वो दूसरी किसी कंपनी के हैं, जिसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अब क्वालिटी अच्छा नहीं था, इसीलिए वो प्रॉब्लम हुआ। अब यहाँ पर कौन क्या किया सेलर ने? सेलर हैज कमिटेड अ फ्रॉड। उसने क्या फ्रॉड किया है? उसने एप्पल फोन में, आईफोन्स में खोल के उसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको बदली किया है। यहाँ पर कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, इफ द बायर takes the seller to the court of law, the court is not going to give the excuse of caveat emptor to the seller, because क्या चेक करना चाहिए था बायर ने? वो चेक किया, क्या चेक किया उसने? उसने चेक किया ऊपर का कवर बराबर है, अंदर का जो हैंडसेट है वो बराबर है, उसके जब ऑन किया तब आईफोन दिख रहा था, सब बराबर है। अब कोई भी बायर तो स्क्रू ड्राइवर लेकर नहीं जाएगा या खोलेगा नहीं और चेक नहीं करेगा कि सारे माइन्यूट जो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं अंदर, जो आईसी है, मदरबोर्ड है, रैम है, वो सब एप्पल का है या नहीं है, या आईफोन का ही है या दूसरी किसी कंपनी का है। नोबडी डज दैट पर्टिकुलर थिंग, और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं। तो यहाँ पर केवेट एम्प्टर नहीं अप्लाई होगा। केवेट एम्प्टर यहाँ पर कब अप्लाई हो सकता है? जब सेलर बोल रहा है कि आईफोन का पीस है, पर जो पीस कवर है उसके ऊपर आईफोन का लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सैमसंग का दिखा रहा है। जब हैंडसेट खोला गया तब भी सैमसंग है, पर सेलर उसको बार बार बोल रहा है नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा देर के लिए आईफोन दिखेगा, बाद में 5 घंटे के बाद वो ये सैमसंग दिख रहा है, सिर्फ स्क्रीन, वो आईफोन का स्क्रीन दिखेगा। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बायर को दी जाती है तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, देन ही इज प्रोटेक्टेड अंडर केवेट एम्प्टर। बट व्हेन फ्रॉड इज कमिटेड, जब धोखा दिया जाता है, तब ये एक्सेप्शन कभी भी यूज नहीं किया जा सकता अंडर केवेट एम्प्टर, राइट? So this is regarding caveat emptor and what are the exceptions regarding caveat emptor. Still, if you have not understood anything, tomorrow when we will be starting our session, we can discuss again with more examples related to exceptions of caveat emptor. Once everything is understood, then we can proceed to the next part, that is transfer of property or transfer of ownership. कि वो क्या है, that is very important. You should understand that what is the meaning of transfer of property. ठीक है? So this is all for today. Tomorrow again at same time 8:30 AM when we will be starting the discussion. If you have not understood anything related to today's session, you can get it clarified at the start itself. Once no queries are, if no queries are there, then we will immediately start with the next topic, that is transfer of property or transfer of ownership. So before winding up, what you can do is you can take the screenshot of this and come prepared. आज थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ा है, कल और बढ़ना चाहिए। तो जितना हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, it will be better for you to recall at the time of examination and answer the queries at the time of examination. Instead of mugging up the things, it is better if we understand the concept, understand the meaning, right? Okay, so thank you. Just take a screenshot of this
come prepared tomorrow. We will discuss more about these things. Thank you, everyone. Thank you, sir. See you Thank you, tomorrow. sir. Thank you.